हेलो गाइस, यूट्यूब चैनल काकरान एजुकेशन एंड टेक्निकल पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक की 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई येस और नो। ओके, then we start first question. X plus 3 equal to, now we start first question. X plus 3 equal to 0, here x equal to 3 means we complete the equation. Here x plus 3 equal to 0, then we place the value x equal to 3, then 3 plus 3 equal to 0. Here 3 plus 3 equal to 0. Here 6 equal to 0. Now 6 equal to 0 not okay, then equation is no. Okay, then we start the question second. X plus 3 equal to 0, here x equal to 0, then we place x 0 plus 3 equal to 0, then 3 equal to 0 not, then he is also no. Now in third question, x plus 3 equal to 0, x equal to minus 3, then we place minus 3 plus 3 equal to 0. When we complete the equation, minus 3 plus 3 equal to 0, then equation say satisfy yes. Okay, then next fourth question, x minus 7 equal to 1, here x is equal to 7, x minus 7 equal to 1, we place 7 minus 7 equal to 1, 0 equal to 1, so is also no, because 0 is not equal to 1. Then x minus 7 is equal to 8, 8 minus 7 equal to 1, here 1 equal to 1, then he satisfy the equation, here is yes. Next 6.5, x equal to 25, x here value 0, then we place x 0 equal to 25, 0 equal to 25 yes, then equation becomes not satisfied, then is false, then no. Next 5x equal to 25, x equal to minus 5, then 5 minus x equal to 25, here minus 25 also no. Now we start 7th question, 5x equal to 25, x equal to 5, then we place here 5x minus 25, place the value 5 into 5 minus 25, here 25 minus equal to 25, then he satisfy yes no. Now we come on 9th point, m divided by 3 equal to 2, m here is equal value minus 6, we place m minus 3 equal to 2, place value minus 6 by 3 equal to 2,
3 2 -2 equal to 2 is also no. Then we place value. M equal to 0. Then m by 3 equal to 2. Then place value 0 by 3 equal to 2. Any question we divide, then 0 equal to 2. No. Then m minus 2 equal to 6. Here value 6 by 3 equal to 2. 3 2 2. 6. 2 equal to 2. Equation yes. Now guys, we solve the first question complete of exercise 4.1. First question complete. Here we place the value in the equation and we say here the value is yes or no. So guys, I think you should learn everything. आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, समझ में आ गए होंगे, और इसके लिए धन्यवाद। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। 1 by 1 कंप्लीट द सेकंड क्वेश्चन। Here n plus 5 equal to 19. Here n is equal to 1. अब हम n की वैल्यू 1 इसमें रिप्लेस करेंगे और इसको चेक करेंगे कि क्या वैल्यू है। ठीक है, यस और नो। ओके, 1 plus 5 equal to 19. Here 6 equal to 19. 6 बराबर 19 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बी पार्ट 7n plus 5 equal to 19. Here n is equal to -2. तो अब हम n की वैल्यू -2 को प्लेस करेंगे। 7 -2 plus 5 equal to 19. -14 plus 5 equal to 19. Here 9 equal to 19. -9 equal not equal to 19. So second part also no. C part 7 into 2 plus 5 equal to 19. 14 plus 5 equal to 19. 19 equal to 19. Then is true, means yes. Fourth part 4p minus 3 equal to 13. p की वैल्यू 1, तो हम अब p की वैल्यू 1 रखेंगे और 1 minus 3 equal to 13. 4 minus 3 equal to 13. 1 equal to 13. ये भी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ पार्ट 4p minus 3 equal to 13. p की वैल्यू 4 रखना है, तो 4 equal to -4 minus 3 equal to 13. 4 4 जा 16 minus 16 minus 3 equal to 13. तो ये -19 equal to 13, तो ये भी 9 हो जाएगी, तो ये भी आ जाएगी 9। फिफ्थ 4p minus 3 equal to p की वैल्यू 0, तो अब हम क्या करेंगे, 4p means 0 minus 3 equal to 13। तो ये क्या हो जाएगी, जब हम 0 को किसी भी
चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम 0 के साथ कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगी। तो 4 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 -3 इक्वल टू 13, तो -3 इक्वल टू 13, तो ये भी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हेड एंड ट्रायल मेथड से हमें p की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में कि क्या वैल्यू डालें हम कि इसकी वैल्यू है जो 17 के इक्वल आ जाए। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम। अब हम स्टार्ट करेंगे कि p की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे कि जिससे हम इसको 17 के बराबर कर सकेंगे। तो फर्स्ट हेड एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है 1 बाय 1 हमें वैल्यू उसके अंदर रखनी होती है और सॉल्व करके ये चेक करना होता है कि ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है। अभी हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अभी p की वैल्यू को हम स्टार्ट करेंगे। हेड एंड ट्रायल मेथड का मतलब ही यही होता है कि जो यहाँ पे p वैल्यू दे रखी है वो हम 1 2 3 एंड सो ऑन हम 1 बाय 1 वैल्यू को रख के देखेंगे। तो हम पहले 5p के अंदर हम वैल्यू को 1 को रखेंगे +2 इक्वल टू 17। तो 5 + 2 इक्वल टू 17, 7 इक्वल टू 17, 7 नॉट इक्वल टू 17। जो हमने p की वैल्यू 1 रखी है वो इसके बराबर नहीं आई है। तो अभी हम नेक्स्ट 2 वैल्यू रखेंगे p की और चेक करेंगे क्या ये इक्वेशन इसके बराबर हो जाएगी। तो हम 5 p की वैल्यू को 2 रखेंगे +2 इक्वल टू 17। हेड एंड ट्रायल मेथड यही होता है कि 1 बाय 1 हम इसको रख के वैल्यू को चेक करेंगे। अब क्या हो जाएगा 5 2 10 +2 इक्वल टू 17, 12 इक्वल टू 17। ये भी 12 17 के बराबर नहीं है, तो ये भी वैल्यू हमारी मैच नहीं करती है। तो हम नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे। इसी को हम हेड एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। अब हम p की वैल्यू 3 रखेंगे। 5 × 3 + 2 इक्वल टू 17। 5 3 15 + 2 इक्वल टू 17, 17 इक्वल टू 17। तो हमें p की वैल्यू मिल गई है जो कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका p इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है 3m - 14 इक्वल टू 4। 3m - 14 इक्वल टू 4। वही वैल्यू जो हमने p में रखी थी 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही हम इसमें करके रख सकते हैं। लेकिन आपको अगर टेबल वगैरह आती है तो हम इसको बाय जनरल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या वैल्यू रखेंगे, पहले वो m इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे हम इसको वैल्यू को रखते जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम वैल्यू को रखेंगे डायरेक्ट 3 × 6 - 14 इक्वल टू 4, 18 - 14 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। तो हमारी इसमें m की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं हेड एंड ट्रायल मेथड। ये हमें 1 से स्टार्ट करना है और 1 बाय 1 वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं और हमें अब इक्वेशन बनानी है स्टेटमेंट को पढ़ के कि क्या हमारी इक्वेशन बनेगी।
फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज इक्वल टू 9। सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज इक्वल टू 9। तो x जो सम है वो x में 4 ऐड करने के बाद 9 बन जाएगा। इसका मीनिंग ये है, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4 इक्वल टू 9। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4 इज 8। 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। तो हम y माइनस 2 इक्वल टू 8, ये इक्वेशन बनेगी। फिर थर्ड इक्वेशन की बात करें। 10 टाइम्स a इज 17। 10 टाइम्स a इक्वल टू 17। ओके। फोर्थ क्वेश्चन द नंबर ऑफ b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। तो b को हम 5 से डिवाइड करने पर क्या वैल्यू आएगी? 6 आएगी। ये हमारी इक्वेशन ऐसे बनेगी और इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब फोर्थ की फिफ्थ क्वेश्चन में 3/4 ऑफ t इज इक्वल टू 15। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3/4 t इक्वल टू 6 पार्ट है 7th टाइम m प्लस 7 गेट यू 77। 7 टाइम m प्लस 7 इक्वल टू 77। 7th 1/4 ऑफ नंबर x minus 4 gives 4 means 1/4 x minus 4 इक्वल टू 4। ये हम 1 बाय 1 इनको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन के 8th पार्ट को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। क्या इक्वेशन आती है? इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y यू गेट 60। क्या कहते हैं कि 6 टाइम y में से हम 6 अवे मीन्स माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल देगा? 60 मिलता है। तो हमारी जो इक्वेशन हो इस तरह पड़ेगी 6y माइनस 6 अवे इक्वल टू 60। अब हम 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30। 1/3 z प्लस यू ऐड 3 इक्वल टू 30। और हम ऐसे इस क्वेश्चन की जो इक्वेशन हो ऐसे हम निकालेंगे। यू ऐड 3 टू 1/3 z प्लस 3 इक्वल टू 30। अब हम 5th क्वेश्चन की पे चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब हम 5th क्वेश्चन की बात करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे 4th क्वेश्चन से बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें स्टेटमेंट बनानी है। 1 बाय 1 हम स्टेटमेंट बनाएंगे इक्वेशन को देखते हुए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? p प्लस 4 इक्वल टू 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। द नंबर ऑफ सम the sum of number p अब हम 5th क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे 4th क्वेश्चन से बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें स्टेटमेंट को बनाना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? द सम ऑफ नंबर p is the sum of number of p, the sum of number of p and 4 is 15।
the sum number of p 4 is equal to 15. अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे m माइनस 7 इक्वल टू 13. 7 सब्ट्रैक्ट 7 subtract from m is 3. Third question, 2m equal to 7. 2 times m is 7. फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे. 3m by 5 इक्वल टू 6 को हम स्टेटमेंट में कैसे करेंगे. 3 5th m is 6. फिफ्थ पार्ट में क्या है. 3m by 5 इक्वल टू 6. 3/5 m is 6. तो इस तरह से हमने फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा फोर्थ पार्ट से पहले हमने फिफ्थ पार्ट को कर दिया था. हम फोर्थ पार्ट को अभी क्लियर करेंगे. इसमें m by 5 इक्वल टू 3. तो हमारा क्या हो जाएगा. 1/5 of number 1/5 number 1/5 of a number 1/5 of number n is 3. फिर हमारा सिक्स पार्ट में आ जाएगा हमारा 3m plus 4 इक्वल टू 25. तो हम 3 times of number 3 times of number p when added 4 gives 25. 3 times of number p when added plus 4 gives equal to 25. अब हमारा सेवंथ क्वेश्चन है 4p minus 2. 4 times p 4 times of number 4 times of number p when subtract 2 gives 18. और हमारा सेवंथ क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा एक पार्ट है p/2 plus 2 is 18 को हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे. हाफ ऑफ p added to is 18. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. add to half
number of key get 18। ऐसे भी लिख सकते हैं हम और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप आपकी मर्जी, आप कैसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो 6th क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। नाउ वी स्टार्ट द 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 of class 7. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles permit. As Irfan has 37 marbles, take M for M to be the number of permits marbles. हमारा जो 6th क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोलता है, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। 6th का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी रीड किया, जब भी आप कोई वीडियो देखें एक्सरसाइज की तो प्लीज़ अपना मैथ की बुक अपने साथ रखें ताकि आपको पता चल जाए कि एक्सरसाइज कैसे सोल्व हो रही है और कौन से क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट किया जा रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन 6 के फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करते हैं। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम मार्बल परमिट। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। तो हमें इसकी इक्वेशन को सेटअप करना है। तो फर्स्ट जो है वो क्या बोलते हैं, 5 टाइम्स परमिट मार्बल। तो ये 5 टाइम्स मार्बल 7 इरफान, और टोटल कितनी है इरफान के पास 37। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो ऐसे आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y in years. Lakshmi's father 49 years old, or he has 4 years older than 3 times. 3 y से हमें इसको years को डिनोट करना, 3 times he is 4 years older than 3 times. 3y plus 4 equal to 14 हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन को सेटअप करेंगे। द टीचर टेल्स द क्लासेस दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Score to be denoted by L. तो हम थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, a student in her class twice the lowest marks plus 7. तो हमारे थर्ड क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो कैसे बन जाएगी हमारी, 2L plus 7 equal to 87. 87 total marks, 2 times twice then lowest mark plus the student है 7 और प्लस 7 equal to 87। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट हमारा रहता है जिसको हम अभी सॉर्ट आउट करेंगे। अब इसमें हम स्टेटमेंट को देखेंगे कि इसमें हमारा क्या बोल रहा है। 6th क्वेश्चन में है, इन एन आइसोलेसिस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्री, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्रीज। इन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल हमारी ये होती है, और जिसका एंगल सम्स कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन आइसोसेल्स ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस
एंगल दे रखा है और बी से हमें डिनोट करना है, ये बी और ये बी। इसमें एक एंगल ट्वाइस दे रखा है आइसोलेस, तो इसमें हम इसको 2b कर देंगे तो हमारे कितने टोटल, जब हम टोटल करेंगे इसका तो हम कितने हो जाएंगे, 2b प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 4b इक्वल टू 180 डिग्री। सो गाइस हमारी आज फर्स्ट 4.1 एक्सरसाइज और क्लास 7 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको अगर एक्सरसाइज समझ में आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दूसरे स्टूडेंटों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। धन्यवाद।